वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जय वाघ। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड दिस इज आवर कंसिक्वेंटली 11th सेशन विच इज वी हैव डेडिकेटेड टू फाउंडेशन इन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज तक आपने जो देखा, कंसिक्वेंटली जो 10 लेक्चर्स आपने जो देखे हैं उसमें आपने एक बात रियलाइज की होगी कि वी हैव फिनिश्ड द फाउंडेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सेल। तो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। Now we'll move to a group of cell that is called as a tissue. So today's entire lecture and hereafter few lectures will be entirely dedicated to tissue and study of tissue. तो बच्चों, जैसे कि हम हर बार की लेक्चर की शुरुआत करते हैं, टुडे we'll also start this session with a positive thought, and this thought belongs to the great missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. See, the thought is, if a god pushes you at the edge of the difficulty, if the god pushes you at the edge of the difficulty, then trust them fully, because two things can happen. First thing, either he will catch you or he will teach you how to fly. तो आप अगर डिफिकल्टी में हो, इफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, देन ट्रस्ट योर गॉड दैट he will teach you either how to cope with these situations or he will take you away from these difficulties. So teachers are doing the same thing for you bachcho. So just trust us fully, that will definitely teach you how to overcome the problems or will definitely keep you away from those problems. तो come to the point, आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। अगर डिफाइन किया जाए, आपको 7th स्टैंडर्ड से आगे कोई भी बुक ले लो साइंस की, उसमें बायोलॉजी सेक्शन में टिश्यू का डेफिनेशन बहुत ही इजीली मिल सकता है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, ऐसा आप बेसिक लेवल पर कह सकते हो। बट दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू कैन से इट इज अ ग्रुप, ओनली ग्रुप ऑफ सेल. It is something else than group of cell, because just a group of cell is not enough to form a tissue, as few, or I can say 11 peoples, any 11 peoples will come together and they will call as a team. It is not so. We know it very properly that taking just 11 peoples and calling them as a team, it will be foolishness. Similarly, just a group of cell is not called as a tissue. Then what it must have to said that it is a tissue? तो यही हमें डेफिनेशन में पता चलने वाला है। इन प्रिसाइज हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सच सेल्स which have at least common origin and common functions. I am telling you at least there are so many criteria to say a tissue, क्योंकि सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको टिश्यू बोलने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है, लेकिन द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो फॉलो करने चाहिए, दे मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन एंड दे मस्ट हैव कॉमन फंक्शन. So come to the point, what is the study of tissue called as? टिश्यू का जो स्टडी होता है, जैसे कि सेल के स्टडी को हमने बोला था साइटोलॉजी, एंड दी Anton van Leeuwenhoek were called as the father of cytology. Similarly, in case of tissue, what is the study of tissue called as? Study of tissue and their arrangement is called as. जैसे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे सेल का अरेंजमेंट पढ़ा था, वैसे ही टिश्यू का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट पढ़ना, इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. सो स्टडी ऑफ structure and arrangement of cells is called, tissue is called as a histology, and histology was first introduced to us by the great scientist Bycat. That's why he is called as a father of histology. तो बच्चों, यहाँ से आगे का जर्नी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ that hereafter few sessions will be dedicated to animal tissue. क्यों? क्योंकि टिश्यूज में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है, whether it is animal tissue, whether it is plant tissue. डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर प्लांट टिश्यू है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू बन जाता है, अगर एनिमल टिश्यू है तो उसमें सोमेटिक और जर्म सेल्स या जर्मिनल टिश्यू बन जाता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वहाँ से स्टडी अलग अलग हो जाता है. तो हमें किस राह पर जाना है, एट द स्टार्ट विल मूव टू एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू में थोड़ी सी मैं कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ. एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनिमल जो सेल्स होती है वो दो तरह की सेल्स होती है. फर्स्ट होती है सोमैटिक सेल्स और दूसरी होती है जर्म सेल्स. तो जो जर्म सेल्स होती है वो तो शायद आपको पता ही होगी, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल सेल्स या दोज सेल्स व्हिच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है.
और सोमेटिक कौन सी? तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसे छोड़कर जितनी भी सेल्स बच जाती है ह्यूमन बॉडी में वो सभी रहती है बच्चों सोमेटिक। दोज cells which form the organs other than sexual or other than reproductive organs called as a somatic tissue। तो सोमेटिक टिश्यू जो होती है इसे प्लांट के लैंग्वेज में वेजिटेटिव टिश्यू कहा जाता है। तो सोमेटिक टिश्यू जो होती है, सॉरी सोमेटिक सेल्स जो होती है, तो सोमेटिक सेल्स जो टिश्यू फॉर्म करेगी उन्हें कहा जाएगा सोमेटिक टिश्यू, और जर्मिनल सेल्स जो टिश्यू फॉर्म करेगी उन्हें कहा जाएगा जर्मिनल टिश्यू। मैं ये सेल्स के बारे में बता रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद टिश्यू। हाँ, सोमेटिक सेल्स टुगेदर will form the somatic tissue and germinal cells together will form the germinal tissue। Definitely this is not our concern topic, so this is our concern topic। तो जितनी भी somatic tissue होती है, somatic cells will form somatic tissue। Okay, तो somatic tissue जो होती है, there are 4 important types of somatic tissue जो आज हमें पढ़नी है। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों वो है epithelial tissue, second type is connective tissue, third type is muscular tissue, and least but not last, nervous tissue। So these are the 4 important types of somatic tissue in animals। Similarly, you will study about the meristematic tissue in case of plants, but that will be latter part, or that will be totally different lecture regarding plant tissue। तो ये रहेगा बच्चों हमारा टॉपिक रिगार्डिंग टिश्यू। तो मूव टू फर्स्ट सोमेटिक टिश्यू जिसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि किसी एक टिश्यू को लेकर हम उसके जितने भी टाइप्स या सब टाइप्स होंगे उन्हें कवर कर देंगे, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट इट इन अ सिंगल लेक्चर। हाँ, अगर पॉसिबल है तो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन वी वोंट मेक इट मैंडेटरी कि सिर्फ एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। कंफर्टेबली समझना या कंफर्टेबली पूरा होना ये एक सबसे जरूरी बात है। तो विल डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो जो बच्चों उसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसके नाम से एक्सप्लेनेशन। तो इपी का मतलब होता है बच्चों अबाउ। अबाउ ये जो टिश्यू होती है, सोमेटिक टिश्यू होती है, ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पाई जाती है। सो दीज टिश्यू आर डेफिनेटली फाउंड अबव सम अदर स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अबव। बट देयर आर टू व्यूज टू सी द वर्ड अबव। You will say so no, above means what? Let any structure is there and this is the structure which is present above it. No, but it is not so, because in case of some hollow structures like blood vessels, some layers are present from inner surface, and what would you call to those? Those are also present above some structures, so we need to consider this condition also। तो above में भी दो conditions बन जाती है। अगर वो कवरिंग करता है, अगर वो कवरिंग करता है और अगर वो लाइन करता है। कवरिंग का मतलब होता है बच्चों किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर से कवर कर देना, किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर से कवर कर देना, ये होता है कवरिंग। जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है दैट इज गोइंग टू कवर, और लाइनिंग का मतलब होता है लेट इट बी सेम स्ट्रक्चर, तो उसे अगर अंदर से हम किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लाइनिंग। तो ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है दैट इज द लाइनिंग, एंड दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर इज द कवरिंग। तो डिपेंड करता है वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस और वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। दोनों को हम अबव ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हॉलो है, तो अंदर की तरफ भी जो लाइनिंग होती है उसे कवरिंग ही कहा जाता है, सिर्फ वो अंदर की तरफ से होती है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस। तो as it is present above and inside, मतलब ये लाइन और कवर कर सकती है, तो इसे एक निकनेम भी मिल जाता है। epithelial cells are also called as a covering और lining tissue। तो इसे कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू ऐसा भी कहा जाता है। विल प्रोसीड वेरी स्लोली, हर बात को अच्छे से समझ लेना है। तो कवरिंग लाइनिंग क्यों कहते हैं, इस पर एक आपका गिव रीजन का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये किसी भी स्ट्रक्चर के या सरफेस के ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की सतह पर होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू। उसके बाद मूव करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ डज इट लुक। तो इन प्रिसाइज मैनर मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी इपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें
एक्चुअली जब इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं तो अलग अलग कंडीशंस आती है। जब इन स्पेसिफिक में स्क्वैमस या कॉलमनर उसके सब टाइप डिस्कस करूंगा तो स्ट्रक्चर बोलना ज्यादा इजी होता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इपिथेलियम के बारे में बोलना है ना कि उसके सब टाइप के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। ये जितनी भी इपिथेलियल टिश्यू होती है, सबसे जरूरी बात वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट होती है। बच्चों, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन इज दैट स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन क्रिएट करता है किसी सेल के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, वैसे ही इपिथेलियल टिश्यू को, चाहे वो कौन सी भी टाइप की इपिथेलियल टिश्यू हो, उसमें आपको एक फाउंडेशन मिलता है जिसे आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है। दैट्स व्हाई ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाली जो सेल्स होती है, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों। कौन सा? तो ये दूसरे टिश्यू से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई उसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं। कौन से? मैं बहुत ही जल्द आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो इपिथेलियल टिश्यू होती है, तो ये इपिथेलियल टिश्यू अलग अलग शेप में आपको पाई जा सकती है, पर एक जरूरी बात उसमें होती है कि ये जितनी भी इपिथेलियल टिश्यू होती है वो आइदर एक शीट फॉर्म करती है या लाइनिंग फॉर्म करती है। तो शीट फॉर्म करना या लाइन फॉर्म करना, इसका मतलब क्या? कभी कभी वो इतनी फ्लैट होती है, इतनी चपटी होती है, दे आर सो फ्लैट दैट दे फॉर्म द शीट लाइक अ, यू कैन से स्किन लाइक स्ट्रक्चर या कवर लाइक स्ट्रक्चर, थीन पेपर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, तो कवरिंग या लाइनिंग फॉर्म कर देती है। तीसरी और जरूरी बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी, बिकॉज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ तक ये जो इपिथेलियल सेल्स होती है, यहाँ तक कोई भी ब्लड वेसल या नर्व नहीं आती है। The structure which do not receive blood supply is called as a non-vascular, and the structure which do not receive nerve supply is called as a non-nervous. मैं अपोजिट बोल सकता हूँ वैस्कुलर और नर्वस। वैस्कुलर का मतलब होता है the structure that receives blood vessels is called as a vascular। तो यहाँ पे दोनों चीजें नहीं आती है, ना तो ब्लड वेसल्स आती है ना तो नर्व सेल्स आती है, मतलब सेंस भी नहीं होता है और ब्लड सप्लाई भी नहीं होता है। तो ऐसी टिश्यू होती है बच्चों इपिथेलियल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन नर्वस एंड नॉन वैस्कुलर। तो बढ़ते हैं आगे। ये फीचर्स याद रखिए कि इपिथेलियल टिश्यू इन जनरल कैसी कैसी होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। उसके बाद व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डन बाय द इपिथेलियल टिश्यू। तो क्या क्या फंक्शंस कर सकती है कोई भी इपिथेलियल टिश्यू। एक्चुअली इपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है वो कौन से फॉर्म में है। अगर वो इपिथेलियल है तो उसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन। तो वो अगर क्यूबॉइडल है तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। वो अगर कॉलमनर है तो उसका फंक्शन चेंज होता है। ग्लैंडुलर है तो फंक्शन अलग होता है। स्ट्रैटिफाइड है तो अलग होता है। बट इन प्रिसाइज में कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे रीड करके दिखाऊंगा, तो वो फंक्शंस एपिथेलियल सेल्स यूजुअली प्ले करती है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर है 116। अगर स्टेट की टेक्स्ट बुक है तो नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी की भी टेक्स्ट बुक होगी, तो वहाँ पे जाके आप ये चीज टैली कर सकते हैं क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो मेजर फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन। क्यों? इपिथेलियल टिश्यू यूजुअली स्किन के फॉर्म में ही पाई जाती है, तो सबसे बड़ा और बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। उसके बाद होता है एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। जैसे कि मैंने बताया, ये सभी फंक्शंस डिपेंड करते हैं कि वो एपिथेलियल का कौन सा टाइप है। तो आगे बढ़ते बच्चों, ये था अबाउट इपिथेलियम। हमने सबसे पहले तो पढ़ा उसका नाम का मतलब क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, देन व्हाट आर द फंक्शंस प्लेड बाय द इपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू होती है, अब इसे हम क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिपेंड करता है इपिथेलियल टिश्यू में कि वो सिंगल लेयर्ड है या मल्टी लेयर्ड है। अगर कोई इपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर्ड होती है तो उसे कहा जाता है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, और अगर वो मल्टी लेयर्ड होती है तो उसे कहा जाता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है इपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर। If it is made up of single layer, it is called as a simple epithelium.
If it is made up of more than 2 layers, it is called as a compound epithelium. तो सिंपल एपिथेलियम में हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं? तो बच्चों एक नहीं दो नहीं, हमें 6 से 7 अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं सिंपल एपिथेलियम में। और कंपाउंड एपिथेलियम में सिर्फ 2 ही टाइप आते हैं, एक तो होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा होता है, एक्सक्यूज मी, एक है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये दो टाइप, except these two type, remaining all the types belongs to simple epithelium. Simple epithelium को मैं अभी शुरू करता हूँ। Simple epithelium में जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है उसका नाम है squamous epithelium। तो चलो, epithelial tissue में दो पॉसिबिलिटीज है, सिंपल और कंपाउंड। तो हम पहले सिंपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम को डिफाइन कर देता हूँ। दोज epithelial tissue which are made from single layer of cells are called as a सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है उसका नाम है बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस का मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर दी फीचर? तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा सीक्वेंस बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम हर टिश्यू या टिश्यू का सब टाइप डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ओके, हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद उसका फंक्शन या वो जो टाइप होगा उसके अलग अलग फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, और सबसे जरूरी बात वो होती है उसकी डायग्राम। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिस्कस अबाउट द एवरी टाइप एंड सब टाइप ऑफ द टिश्यू। तो सबसे पहले तो स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम को मैं पहले डायग्राम वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर डायग्राम मुझे बनानी है स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो इन शॉर्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी अच्छी डायग्राम दी गई है, लेकिन इन शॉर्ट में अगर उसके डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्क्वैमस एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता हूँ, बिकॉज इन केस ऑफ एवरी एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय डिफॉल्ट आता है या कंपल्सरी होता है। अगर मैं 2 डायमेंशनल व्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम बना देता हूँ तो वो आपको ऐसे दिखेगी बच्चों। मैं 2 डायमेंशनल व्यू को ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज 3 डायमेंशनल व्यू विल नीड सो मच टाइम टू स्पेंड, उसे बहुत अच्छी ड्राइंग करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम उस पर जाता है। ये रहा 2 डायमेंशनल लैटरल व्यू। अगर उसे ऊपर की तरफ से मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो मुझे वो सेल्स ऐसी दिखती है फ्रॉम दी एंटीरियर व्यू। जब मैं ऊपर की तरफ से देखता हूँ व्यू अबाउ, तो मुझे वो ऐसे दिखने लगेगी। आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली हेक्सागोन, क्योंकि उसकी मार्जिन जो होती है वो सिरेट तरह की होती है, इरेगुलर होती है। मैं आपको एट द स्टार्ट ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में ज्योमेट्री का डायरेक्टली कोई शेप नहीं इन्वॉल्व होता है। तो ये उनकी न्यूक्लियाई है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। आई होप ये डायग्राम से आप कुछ बातें समझ चुके होंगे। तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो ये जो सेल्स होती है बच्चों कैसी दिख रही है आपको स्ट्रक्चर में, एटलीस्ट आपके पास 2 से 4 पॉइंट होने चाहिए स्ट्रक्चर में। बुक में ऐसा दिया गया है कि सेल्स ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फ्लैट, थिन, पॉलीगोनल विद सिरेट मार्जिन। सबसे पहले तो थिन, क्यों थिन? यहाँ पे आप उसकी मोटाई देख सकते हो। यू कैन सी द थिकनेस, इट इज वेरी थिन। देन सिंगल लेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल एपिथेलियम। देन it is very flat, the same reason as I told you in case of single। तो thin होती है, flat होती है। हाँ, उसका शेप कैसे होता है? तो पॉलीगोनल शेप होता है। पॉलीगोनल इसका मतलब होता है मोर देन 4, कितने भी हो सकते हैं। 5 है तो पेंटागन बोल सकते हो, 6 है तो हेक्सागन बोल सकते हो, लेकिन पॉलीगोनल होती है। उसकी मार्जिन कैसी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस ब्लू कलर लाइन मार्जिन होती है उसकी सिरेटेड मार्जिन। तो सिरेट का मतलब होता है ये ऐसी वाली मार्जिन, ये देखो ये ऐसे मार्जिन, 2/3 बोल सकते हो आप उसे। और ये जो है ये प्लेन मार्जिन है। तो ऐसी मार्जिन नहीं होती है क्योंकि उसे एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होना पड़ता है। अगर प्लेन मार्जिन होगी तो वहां पे इंटरलॉक नहीं होता है, तो मार्जिन होती है सिरेट मार्जिन। हाँ, सबसे जरूरी बात यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस सिंगल है, सिंगल न्यूक्लियस इज देयर। न्यूक्लियस कहाँ पे है? अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर है। मैं चाहे लैटरल व्यू से देखूं या अबव व्यू से देखूं, कहीं पे भी देख सकता हूं, तो मुझे सिंगल सर्कुलर लाइव और सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस दिखता है, चाहे मैं लैटरल व्यू से देखूं चाहे मैं अबव व्यू से देखूं।
दूसरी बात, अगर ये डायग्राम को आप थोड़ी सी अच्छी तरह से देखोगे तो आपके बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे आप पेवमेंट बोलते हो, या किसी भी रोड के साइड में जो फुटपाथ होता है जहाँ पे लोग चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, वहाँ पे आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली दिखता है जिसे पेवमेंट ब्लॉक्स कहा जाता है। तो एज इट लुक्स लाइक अ पेवमेंट ब्लॉक, इसे और एक निकनेम दे दीजिए कि ये पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानी जाती है। तो बच्चों, स्क्वामस का मीनिंग देखा, स्क्वामस के अलग अलग निकनेम्स हमने देखे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। स्ट्रक्चर में आपको बस दो चीजें याद रखनी है, एक तो सेल कैसी है, जैसे कि मैंने बताया थीन, सिंगल, फ्लैट, पॉलीगोनल और सीरेट मार्जिन वाली होती है। सेल्स इतनी पतली होती है कि दे फॉर्म दी शीट, एक शीट या कागज जैसी एक लेयर फॉर्म कर देती है। व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस सेंट्रली सिचुएटेड होता है, सर्कुलर होता है, लार्ज साइज्ड होता है, सबसे जरूरी बात लिविंग होता है। और बची जो कौन सी बात है जो स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, अभी दो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने दो फॉर्म मैंने बताए थे बच्चों। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया था वहां पर, वो पॉइंट था कि दीज आर नॉन वैस्कुलर एंड दीज आर नॉन नर्वस। तो वो पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। सबसे एंड में बचते हैं उसके फंक्शंस। तो व्हाट आर द फंक्शंस प्लेड बाय द एपिथेलियल टिश्यू? तो जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कौन से लोकेशन में होती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उसके फंक्शंस डिटेक्ट करने हैं बच्चों। तो लोकेशन कौन कौन से होते हैं मैं एक बार रीड कर देता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टेट की या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको लोकेशन बहुत ही इजीली मिल सकता है। कौन कौन से लोकेशंस होते हैं बच्चों? तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर होता है। इट इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई एंड सीलोम। तो ब्लड वेसल्स में अगर होती है तो ब्लड वेसल की अंदर की तरफ से होती है, लेट इट बी ब्लड वेसल, तो उसके अंदर की लाइनिंग में ये मौजूद होती है। दूसरे होता है एल्वियोलाई। व्हाट आर एल्वियोलाई? आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके होंगे 9th या 10th स्टैंडर्ड में। तो वहां पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो पूरे बनाने का काम होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरी बात होती है सीलोम में प्रेजेंट होती है। व्हाट इज दिस सीलोम? तो सीलोम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चैप्टर में समझ में आएगा। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जितने भी डेवलप्ड एनिमल है वो सिलोमेट है, और बॉडी के अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं बच्चों सीलोम या पेरिटोनियम। तो ये जगह पे वो पाई जाती है। नाउ दीज आर दी लोकेशन। तो लोकेशन मैंने बता दी है कि ब्लड वेसल्स में होती है, एल्वियोलाई में होती है और सीलोम में होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन उनके फंक्शंस देख लीजिए। तो उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं बच्चों? दे प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, बीइंग आउटरमोस्ट या लाइनिंग या कवरिंग। तो उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन। दूसरा होता है एब्सॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट, देन फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन। तो इतने सारे फंक्शन वो करती है। मैं एक बार सब एनलिस्ट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, किसी चीज से स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर, सपोज देयर इज आप ये समझ सकते हो कोई भी शीट है वो जैसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल की लाइनिंग। तो वहां पर वो कुछ चीजों को आने देता है और कुछ चीजों को आने नहीं देता है। तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेशन। उसके बाद होता है सिक्रीशन, सिक्रीट करना, जैसे कि ग्लैंड्स कुछ सिक्रीट करती है ऑलरेडी, कुछ सब्सटेंसेस या सिक्रीशंस होते हैं, उन्हें सिक्रीट करने की प्रोसेस को कंट्रोल करना। एब्सॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है। एब्सॉर्प्शन का मतलब भी आपको पता होगा, टू एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटर सराउंडिंग। आउटर सराउंडिंग में से इंपॉर्टेंट चीजों को ये कर लेना, एब्सॉर्ब कर लेना। उसके बाद होता है कंडक्शन। तो ठीक है, ये सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के। तो ये पहला टाइप था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में, जिसका नाम था स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को हमने आज डिटेल में पढ़ा। अब आप यही जो स्ट्रक्चर है वो हर टाइप को अप्लाई कर दीजिए, आपको सभी टिश्यू अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं पर्टिकुलरली वो चीज जो हमें नहीं रब करनी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो हर टिश्यू में आपको ये स्ट्रक्चर से गुजरना है, and you will go through this structure
and then you can understand it very properly. तो second example मैं ले रहा हूँ epithelium tissue में, जिसका नाम है बच्चों cuboidal epithelium. So second type of epithelium tissue is cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelium. Now we'll follow this sequence. कौन कौन सा? Structure, function, diagram, location. तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, उसके बाद लोकेशन की, उसके बाद फंक्शन एंड डायग्राम. तो डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी. तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ स्क्वैमस एपिथेलियम से. ये जैसे कि रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाउंडेशन स्ट्रक्चर. उसके बाद मुझे सेल्स ड्रॉ करनी है. तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो स्क्वैमस एपिथेलियम को क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ. आपको स्क्वैमस एपिथेलियम ड्रॉ करते वक्त मैंने एक चीज बताई थी कि वो थिन शीट फॉर्म कर देती है. यहाँ पे आपको कुछ टॉल दिख रही होगी. सेल्स आर समवॉट स्क्वायर इन स्ट्रक्चर. हाँ, ये कॉमन चीज है स्क्वैमस और क्यूबॉइडल में कि उनका न्यूक्लियस एट द सेंटर होता है, स्फेरिकल होता है, और सबसे जरूरी बात एट द सेंटर प्रेजेंट होता है और लाइव होता है. तो स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ अलग डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली बता सकते हो कि स्ट्रक्चर में सेल्स आर समवॉट क्यूब शेप्ड. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्यूबॉइडल. थोड़ी सी मोटाई आ जाती है, दैट्स व्हाई दे बिकम क्यूब शेप्ड. और बाकी जितनी भी चीजें मैंने एपिथेलियम में बताई थी वही आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए. मतलब क्या, इट रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन नर्वस है, नॉन वेस्कुलर है. दूसरी बात जो हर एपिथेलियम में होती है, इट इज सिंगल लेयर अगर सिंपल का टाइप है तो. उसके बाद उसका लोकेशन देखते हैं बच्चों. लोकेशन कहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है? तो इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, सैलिवरी डक्ट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन. तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसका लोकेशन क्या होता है. जो अलग अलग डक्ट्स होते हैं ना, डक्ट्स का मतलब होता है पाइप्स या ट्यूब्स दैट कैरी द सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड्स. तो जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जितनी भी ट्यूब्स होती है, उनके सिक्रीशंस कैरी करने वाले जो डक्ट्स होते हैं, वहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है. दूसरा होता है, अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने पीसीटी, डीसीटी, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ एनले पढ़ा होगा. तो वो सभी जो डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो आप ये क्लू समझ लीजिए कि किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी ग्लैंड्स के, चाहे वो एंडोक्राइन हो या एक्सोक्राइन ही ग्लैंड में आपको डक्ट्स मिलती है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड आती है, उसके बाद पैंक्रियाटिक ग्लैंड आती है, बाइल आती है, बाइल का डक्ट आता है. तो ये सभी डक्ट जो होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग किससे बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है. उसके बाद डिस्कस करते हैं उसका फंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, वो जहां पे है अकॉर्डिंग टू दैट उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. अगर डक्ट्स में है तो सिक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड अलोंग विद दैट उसका फंक्शन होता है सिक्रीशन. देखो, एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये रहे उसके फंक्शंस. तीसरा और सबसे आखिर वाला जो पार्ट था डायग्राम, ये मैंने बना दी है. तो अगर आपको सेल या टिश्यू पढ़नी है, ये स्ट्रक्चर, ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए, चाहे शफल्ड मैनर में हो. सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद लोकेशन, एंड देन फाइनली फंक्शन. तो ये था क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में. बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जिसका नाम है columnar epithelium. Third type of epithelial tissue, and it is called as a columnar epithelium. Columnar epithelium tissue. जैसे यहाँ पे क्यूबॉइडल आपको सजेस्ट करता है क्यूब, वैसे ही कॉलमनर में आपको ये वर्ड सजेस्ट करता है कॉलम. कॉलम कैसे होता है? तो टॉल होता है. तो सबसे पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, उसकी डायग्राम बना देता हूँ. In that manner it will be easier to understand. ये as usual मैं basement membrane बना देता हूँ on which the cells will rest. उसके बाद मैं cells बना देता हूँ. बच्चों आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी डायग्राम. See, this is how the cells of the columnar epithelial tissue are present. आप देख सकते हो. Now you can compare the previous two types, squamous और क्यूबॉइडल से उसे कंपेयर कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. और हाँ, सबसे जरूरी चेंज आपको यहाँ पे देखना है, इसके न्यूक्लियस का शेप देखिए, थोड़ा सा ओवल हो रहा है. और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सेंटर में प्रेजेंट है या बेस में प्रेजेंट है, ये भी आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बन जाता है. तो कॉलमनर एपिथेलियम में
मैं आपको सिर्फ अलग चीज क्या है वो बताऊंगा। आई वोंट वेस्ट योर टाइम इन डिस्कसिंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना दी हमने, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों। तो जो सेल्स होती है वो टॉल होती है, टॉल कंपेरेटिवली टॉल होती है स्क्वामोस और क्यूबॉइडल से। तो टॉल होती है, कॉलम लाइक होती है। दूसरी बात, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस। कैसे दिखता है न्यूक्लियस, तो ओवल दिखता है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड दिखता है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ग्रेन्यूल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, किसके, कॉलमनर एपिथेलियम के। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। ये चीज सबसे जरूरी होती है बच्चों, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही हम फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो लोकेशन क्या होता है, कौन से जगह पे वो पाया जाता है, ये ठीक से पढ़िए आप। ये मैं भी पढ़ लेता हूँ, आई वोंट टेल यू दिस इज इन वेग मैनर। तो कॉलमनर एपिथेलियम का लोकेशन होता है बच्चों, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, द लोअर हाफ ऑफ द सॉरी ये कहाँ पे होती है, इट इज फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड एटसेट्रा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना बच्चों, जहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन का काम होता है, वहां पर कौन पाया जाता है, कॉलमनर एपिथेलियम में। फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। तो जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स या ट्यूब्स होती है ना, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, वेर एवर इट में भी, जहाँ पे भी सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन का काम होता है, वो सभी चीजों में, वो सभी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है, कॉलमनर एपिथेलियम। मैं क्लू यहाँ पे दूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डक्ट्स और ट्यूब्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की डक्ट्स और ट्यूब और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्या क्या पाया जाता है, कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना दी, उसके बाद उसका नाम बता दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, फंक्शन और लोकेशन। तो ये रहा कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। कॉलमनर एपिथेलियम हो जाने के बाद आपकी कौन सी सेल बचती है, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चों सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फोर्थ टाइप है कंसिक्वेंटली, सीलिएटेड कॉलमनर। कभी कभी ये सीलिया क्यूबॉइडल पर भी प्रेजेंट होती है, तो उसे जस्ट अकॉर्डिंगली आप नाम बदल दीजिए सीलिएटेड क्यूबॉइडल, लेकिन यूजुअली जो पाई जाती है वो होती है सीलिएटेड कॉलमनर। तो सीलिएटेड कॉलमनर और कॉलमनर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। मैं वही डायग्राम को सीलिएटेड में चेंज कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है ना कॉलमनर एपिथेलियम का, वही फ्री एंड वाला जो पार्ट होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बेयर करता है, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो बन जाती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है कॉलमनर एपिथेलियम से। उसका लोकेशन और फंक्शन क्या है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये ट्रकिया और ओविडक्ट, ट्रकिया होती है विंड पाइप और ओविडक्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो ओवम को कैरी करता है टुवर्ड्स द यूट्रस। तो जहां पे भी कुछ कैरी करना होता है, तो कैरी करते वक्त जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, ट्रकिया के म्यूकस हो, या ओविडक्ट में जो ओम होता है उसे कैरी करने के लिए एक स्वीपिंग मूवमेंट की जरूरत होती है। स्वीपिंग मूवमेंट जैसे कि घास स्वीप करती है, या एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर को आगे ढकेल सकती है। इट कैन पुश दैट सब्सटेंस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी जगह पे सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये था अबाउट एपिथेलियम के 4 टाइप्स आज हमने देखे। तो कौन कौन से टाइप हमने देखे, स्क्वामस देखा, उसके बाद क्यूबॉइडल, उसके बाद कॉलमनर और सीलिएटेड। इसके बाद जो टाइप्स बचते हैं बच्चों, इसमें होता है ग्लैंड्यूलर, सेंसरी, उसके बाद है 7th जो टाइप है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। और उसके बाद आपको पढ़ने हैं कंपाउंड एपिथेलियम में 2 टाइप, एक है उसमें स्ट्रैटिफाइड और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो मैं ट्राई करूंगा कि वो अगले लेक्चर में करें हम, क्योंकि हमें बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, बिकॉज ये फाउंडेशन बैच है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको समझनी चाहिए और आपके 11th स्टैंडर्ड में इसकी आपको हेल्प होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे, और सबसे जरूरी बात कि कंपाउंड एपिथेलियम को खत्म करके हम जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसकी थोड़ी सी स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।